Dear students, welcome in the lecture of Social Science, Standard 8, Chapter number 4, How the Traders Became Rulers. First, I will start the introduction of the lesson. Here, during the recess, some children are reading the story of two cats and a monkey. We know this story very well. When two cats were quarreling, the monkey took advantage of it, right? And on the reading this story, Joy and Mitali were the students who were making fun of each other. The class teacher who was sitting beside them said, "Children, this too is a policy." इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिसी कि जब दो जन लड़ रहे हो तो जो थर्ड पार्टी होती है वो एडवांटेजेस ले लेती है. द ब्रिटिश हैड एक्सपांडेड देयर एम्पायर इन इंडिया विथ सच अ पॉलिसी. Jay asked, "Sir, how is that possible?" The class teacher replied, "Let's go to the class and there I will explain about how the British came to India and established their rule over the Indians." Now class teacher is explaining the policy of the British. When they came to India, they were traders. But initially gradually they took over so many provinces of India and started ruling over it. Instead of the Mughals and so many Peshwas and so many kings, they have expanded that empire. See in this map you can see how they expanded their rule. After becoming the traders, they became rulers. Okay, now we are going to read. By the mid of the 18th century, the British had started to emerge as a strong power on the Indian political horizon. Do you know that the British came to India only for trade? Initially, they took permission to trade in Indian states. Then how did they become the rulers of entire India? The history of British rule arouses many such questions. To serve their economic interests, they increased their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. ओके, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया था इंडिया की बहुत सारी जो टेरिटरीज थे अपना एम्पायर उन्होंने एक्सपांड करना शुरू कर दिया था. ठीक है, पहले तो ट्रेड्स के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी. जो किंग रूल कर रहे थे जो स्टेट में उनसे परमिशन मांग के उन्होंने बहुत सारे जो फोर्ट है वो एस्टेब्लिश कर दिए थे. लेकिन धीरे धीरे उनको इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होने लगा. उनको लगा कि भारत ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें वो बहुत अच्छी तरह से रूल कर सकते हैं. कैसे? तो बहुत सारे किंग्स जो थे उसकी अंदर अंदर आपस में कुछ बनती नहीं थी. वो खुद ही अंदर अंदर झगड़ा करते रहते थे लाइक टू कैट्स. तो ऑब्वियसली ये ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने मंकी का काम किया कि अंदर अंदर किंग को और झगड़ा करवाना शुरू कर दिया और इस तरह से उसने अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया. नाउ वी सी वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन. When Wellesley came to India as the Governor General, cutthroat competition existed between England and France. It was necessary to check France from becoming powerful in India. So, as to expand the British rule in India, Wellesley introduced a new plan which was known as the Subsidiary Alliance. As per the scheme, any princely state that accepted the alliance had to keep and maintain the British army as well as keep a British representative in the royal court. This way, the British could maintain their army without spending any money. However, the princely states were not allowed to utilize the army at their own will. This system, which made many feel secure in the beginning, made them feel enslaved and threatened. Subsidiary alliance acted like a slow poison for the princely state of India. The Indian states that became the victim of the subsidiary alliance were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gayakwads of Vadodara, Peshwas of Pune and Scindias of Gwalior. Okay, we will see what is the Wellesley's policy of expansion. तो जब वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन के भारत में आया था तब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन थी. गला काप स्पर्धा जिसको बोलते हैं. तो कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन थी क्योंकि इंग्लैंड से पहले फ्रांस आया था भारत में. फ्रांस पहले अपनी जो फोर्ट है वो एस्टैब्लिश कर चुका था. फ्रांस का ट्रेड पहले ही चल रहा था और उसके बाद इंग्लैंड आया. तो इंग्लैंड ने देखा कि यहाँ पे फ्रांस जो है अपने जो स्टेप है वो जमा कर चुका है. तो अब इंग्लैंड को कंपटीशन लग रही थी. इंग्लैंड को कंपटीशन में उतरना था, फ्रांस को हराना था. तो फ्रांस जो पावरफुल बन रहा था उसको
कम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना जो एक्सपांसन है, इंग्लैंड का जो एक्सपांसन है वो भारत में बढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए वेलेस्ली ने क्या किया, एक नया प्लान बनाया और जो नया प्लान इंट्रोड्यूस किया उन्होंने भारत में, जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ओके, तो ये स्कीम क्या थी, ये प्लान क्या था? तो इसमें क्या था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट यानी राजा रजवाड़ा वाले स्टेट्स थे, जो कोई राजा रजवाड़ा वाले स्टेट ये सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करेंगे तो उसको ब्रिटिश आर्मी क्या करेगी, उनको सब तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। उसके बदले में उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना पड़ेगा और उनके कोर्ट में, मतलब उनकी जो कोर्ट है, रॉयल कोर्ट जो है, जो राजा का जो भी कोर्ट होता है, उसके अंदर एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव कंपलसरी रखना पड़ेगा। बदले में क्या देगी ब्रिटिश आर्मी, तो उनको प्रोटेक्शन करेगी। दूसरे जो राजा एक दूसरे पर अटैक करते हैं उससे वो ब्रिटिश आर्मी बचाएगी, जो राजा ऐसी स्कीम एक्सेप्ट करेगा वो, ठीक है। तो हाउ एवर द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट देयर ओन विल, लेकिन प्रिंसली स्टेट अपने मर्जी से, अपने तरीके से ब्रिटिश आर्मी यूज़ नहीं करेगी। कौन करेगा, तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही उनको मदद करेंगे और वही यूटिलाइज करेंगे। और ये सिस्टम जो है, पहले तो सब राजाओं ने जो जिसने भी ये ब्रिटिश सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था, उनको पहले शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा कि अरे ये सब्सिडरी अलायंस तो बहुत अच्छी है, हमें बहुत सिक्योरिटी देती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी ब्रिटिश आर्मी है। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि अरे ये जो पॉलिसी है उनसे तो उनको गुलाम बनाया जा रहा है, एक तरीके से उनको धमकी दी जा रही है ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। तो इसको स्वीट पॉइजन या स्लो पॉइजन भी सब्सिडरी अलायंस को बोल सकते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस ऐसे प्रिंसली स्टेट में स्लो पॉइजन का काम कर रही थी, धीमा जहर था या तो मीठा जहर भी उसको बोला जाता है। द इंडियन स्टेट्स दैट बिकेम विक्टिम, कौन सी ऐसी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के विक्टिम बने थे, कौन से ऐसे स्टेट थे? तो वो थे हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड्स ऑफ वडोदरा, पेशवास ऑफ पुणे एंड सिंधियास ऑफ ग्वालियर। ओके, नाउ वी विल टर्न द नेक्स्ट पेज। Okay. Nizam of Hyderabad was the first victim of Wellesley's subsidiary alliance. Then it was Mysore and Ayodhya. Tanjore and Karnataka met with the same fate. The British made the Marathas fight amongst themselves and consequently made them accept the subsidiary alliance. क्या करते थे, उनकी पॉलिसी क्या थी ब्रिटिशर्स की? तो एक राजा को दूसरे राजा से हमेशा फाइट करवाते थे, एक राजा को दूसरे राजा के बारे में कानाफूसी करते थे, उनको ऐसा डर दिखाते थे कि कहीं वो राजा आपके ऊपर अटैक ना कर दे। और राजा डर के मारे क्या करता था, ब्रिटिशर्स से मदद मांगता था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, चलो हम आपको आर्मी देते हैं लेकिन आपको हमारी ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ये एक्सेप्ट की थी और सबसे पहले वही विक्टिम बने थे सब्सिडरी अलायंस के। धीरे धीरे मैसूर बना, अयोध्या बना, तंजौर बना, कर्नाटका बना, ठीक है। और इसी तरह से मराठास को भी उन्होंने अंदर अंदर झगड़ा करवा दिया और मराठा ने भी एक के बाद एक करके सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर दिया। Now, owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept this alliance. Tipu Sultan of Mysore refused to do so. But after the British victory in the Fourth Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become subsidiary state. Maratha chiefs fought amongst themselves after the death of Nana Fadnvis. One by one, all the Maratha states became the victim of divide and rule policy of the British. The other states, namely Ayodhya, Gorakhpur, Tanjore, Karnataka, Farrukhabad, also suffered the same fate. Fate ये मतलब destiny, उनके भाग्य में ऐसा लिखा गया था। In this way, within a span of 7 years, Wellesley expanded the company rule and made the British the supreme power in India. तो इस तरह से क्या होता है कि निज़ाम जो सबसे पहले मराठा के साथ युद्ध करता है, ठीक है, तो मराठा के सामने टिके रहने के लिए वो क्या करता है, ब्रिटिशर्स से मदद मांगता है और अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स उनसे सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करवा लेते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान
वो मना कर देते हैं, जो मैसूर के थे वो मना कर देते हैं कि वो ये पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर होता है, एंग्लो यानी इंग्लिश मैसूर वॉर होता है, फोर्थ इंग्लिश मैसूर वॉर होता है और टीपू सुल्तान हार जाते हैं। इसके लिए मैसूर को भी सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो और क्या करते हैं ये लोग, तो अंदर अंदर मराठा को झगड़ा करवा देते हैं और अचानक से नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है। तो मराठा भी एक के बाद एक ये जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी या तो फिर सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी ब्रिटिशर्स की, उसकी झपेट में आ जाते हैं, मतलब वो उनको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ और सिटी के नाम लिखे हुए हैं, उनका भी यही भाग्य था कि उनको भी सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा। और विद इन 7 ईयर्स के अंदर ही ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत में अपना जो कंपनी का जो रूल था वो एस्टैब्लिश कर दिया और ब्रिटिश धीरे धीरे सुप्रीम पावर की तरफ बढ़ रही थी। नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट दिस पॉलिसी in part 2. Thank you very much.